medicine. Friends, I will tell you something about doctor. He's doing a wonderful work, working on creating a revolution on this dreaded disease, cancer, through homeopathy. He will tell you this in his talk also, how he's going about it. He specialized in children, psychosomatic disorders. And what more to tell about him? And a wonderful person. And you can easily available. Doctor, all is yours. Thank you very much for being with us with your valuable time. He's conducting a lot of workshops also. He's also busy, but he has given us time. Thank you, doctor, to be here again. Thank you, Dr. Jagdish. Yes. Thanks a lot for introducing me. Yes. Well, I'm an ardent follower of yoga. I've been practicing yoga since my age of 15. And yoga has always helped me to concentrate. As I was a mediocre student or an average student, and yoga was the thing which helped me achieve what I have achieved till now. Like yoga, homeopathy is also an holistic science. So what you mean by holistic science? We treat the person as a whole. We treat the man in disease and not the disease in man. Means what? For example, what do you mean by that? Like you must be going to different specialists, different doctors, and okay, you'll be going to one. If you have knee pain, you'll go to orthopedic. If you have eye pain, you will be going to ophthalmologist. If you have some ear problem or nose problem, you'll be going to ENT. The ENT will prescribe you medicines related to your nose. The orthopedic will prescribe painkillers related to your knees. And ophthalmologist related to eye. In homeopathy, it is not so. In homeopathy, what we believe that when you land up in any disease, it's not your part which is disease, it is you, yourself, your whole personality or your whole constitution is disease. So we believe in treating the person as a whole. If you come to us for digestive problems and you have ear problems also, if you have migraine also. So with your digestive problems, your migraine will also decrease, your ear pain will also decrease. It is not that the medicine will differ from organ to organ. So people come to me, आपके पास सर्दी की कोई दवाई है क्या, खांसी की दवाई है क्या, और कोई specifics medicines है क्या जो अभी जो चल रहे हैं, the things which are going on, chalo, you take arsenic, you take camphor, you take this, that, so many, you must be getting so many WhatsApp. Well, that is not homeopathy. Arsenic, which has been recommended nowadays, it's a common medicine for all type of flu, but it is not necessary that it will work for you in all cases. There you have to have symptoms of arsenic. Only and only then you will arsenic will help you. So be sure or assured that okay, if you are taking arsenic, you will not get any type of illness. No, that is a totally wrong concept and a wrong phenomena. The most important thing about homeopathy, there are no specific medicines in homeopathy. Like I told you, we treat the person, we don't treat the organ, or we don't treat the disease which is involved. So it involves a lot of case taking. Means when a person comes to us for a chronic case, we take the history of a person in details. What do you mean by history? It includes his nature, his eating habits, what all problems he had from his childhood. And then accordingly, all the symptoms are noted. And the symptoms which match, when we have to match the symptoms with our medicine, only then we can prescribe that medicine. So I had given an example in the morning also that there are, let's say, 10% come with cough and cold. The diagnosis is the same. The diagnosis is the same for all 10 persons. Like if you go to traditional medicine, they'll give you
same anti-allergic, paracetamol, the same medicines are going to be prescribed. The brand name may change. In homeopathy, the 10 persons will require 10 different medicines depending upon what symptoms they present. Like somebody in cold is feeling very hot. Somebody is in cold he wants fan. While the other person doesn't want fan. Somebody with cold is having difficulty in swallowing liquids only, while the other person is having difficulty in swallowing solids. So the medicine will totally change. And the person who is finding difficulty in swallowing liquids, that medicine will not work for the patient who is having difficulty in swallowing solids, even though the disease name is the same. So most important is whatever medicine specifics you are taking from the market or whatever are available in the market, this biochemical combination R20 you take for prostate or for heart or for blood pressure, diabetes, it is not homeopathy basically, because this is not homeopathic science at all, and that is where homeopathy fails miserably and we say that homeopathy doesn't work. See, I always tell my patients, when patients come to me, I have taken homeopathy for 2 years from this doctor or from 3 years from this doctor. It has not worked. Well, it is not so that it's basically homeopathy doesn't fail. It's the homeopath who fails. Like I explained to you, there are no investigations as such in homeopathy. This is the greatest drawback you can say. So we have to take the case history in details of each and every person, and what you say, I have to convert into homeopathic language and I have to match the medicines accordingly. So either if I don't get a correct information from you, आपने मेरे से झूठ बोला, आपने मुझे complete information नहीं दिया, और मैंने वो बराबर से information interpret नहीं किया homeopathic language में, तो ये मेरी medicine गलत हो जाएगी. तो मेडिसिन गलत होगी तो आप ठीक नहीं हो पाओगे. तो ये जो फेलियर्स होते हैं होम्योपैथ से, नहीं तो होम्योपैथी में, ये इसकी वजह से है कि हमको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है पेशेंट से, नहीं तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो पेशेंट को बराबर से. सो होम्योपैथी नेवर फेल्स, इट इज द होम्योपैथ फेल्स बेसिकली. सो होम्योपैथी हैज ट्रीटमेंट राइट फ्रॉम कोल्ड टू ड्रेडेड डिसीजेस लाइक कैंसर. बट लेकिन अगर हिस्ट्री ठीक नहीं होगी, हमको बराबर से इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, और नहीं तो मेरा ध्यान नहीं होगा पेशेंट पे, तो डेफिनेटली मेरी दवाई गलत हो जाएगी और वो एक सिंपल कफ एंड कोल्ड पेशेंट इज नॉट गोइंग टू गेट क्योर्ड एट ऑल. तो ये समझना बहुत जरूरी है व्हेन यू गो टू अ होम्योपैथ और व्हेन यू अप्रोच द होम्योपैथ की एक डिसीज सेंट्रिक साइंस नहीं है, ये पर्सन सेंट्रिक साइंस है. जैसे हम लोग बोलते हैं वैक्सीनेशन, हाउ वैक्सीन वर्क्स. सो वैक्सीन वर्क्स फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज. ऐसे ही आप कॉमनली एक लेमैन लैंग्वेज पे हम लोग बोल सकते हैं कि होम्योपैथी वर्क्स फॉर द पर्टिकुलर पर्सन, सो इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज. तो जैसे आपने वैक्सीन ले लिया, पोलियो के लिए ले लिया, नहीं तो मेनिंजाइटिस के लिए ले लिया, नहीं तो जो इन्फ्लुएंजा के लिए ले लिया, तो वो पर्टिकुलर डिसीज के लिए आप कवर्ड हो जाते हो. लेकिन होम्योपैथी में आप अगर होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट पे हो, मतलब जिसने हिस्ट्री कंप्लीट दी है, डॉक्टर ने कंप्लीटली एनालाइज करके आपको दवाई दी है और आपको दवाई सूट हुई है, तो देन मैं 100% बोल सकता हूँ इट विल एक्ट लाइक अ जनरल वैक्सीन फॉर ऑल डिसीजेस एंड ऑल डिसीजेस विल बी प्रिवेंटेड. मतलब आपको कोई भी एपिडेमिक डिसीज या बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. अगर होगा तो भी इट इज इन अ वेरी माइनर फॉर्म. जैसे हमारे पास काफी बच्चे आते हैं जिनको 103, 104 बुखार आता रहता है ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, मैं ये नहीं बोल रहा कि बुखार आएगा ही नहीं तो सर्दी होगी नहीं, लेकिन इट वुड बी इन अ माइल्ड फॉर्म. जैसे दूसरों को सपोज सीजनल 101, 102 बुखार आता है होगा, तो होम्योपैथी में वो 100 तक आएगा, ज्यादा से ज्यादा और 2-3 दिन तक रहेगा, एंड द पेशेंट will be all right. And chances of him require antibiotics or any strong medicines decreases significantly. मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको पैरासिटामोल नहीं तो क्रोसिन लेना पड़ेगा और वो पेशेंट ठीक हो सकता है. So there are some misconceptions about homeopathy.
जो हमारे पास मतलब ये 27 साल से अभी नियरली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मोर देन 15,000 पेशेंट्स है जो मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं 1-2 साल, और जो बेटर है वो भी मेरे को आके क्वेश्चंस पूछते हैं, अरे आप स्टीरॉइड देते हो क्या? वेल स्टीरॉइड सबसे पहले तो इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर ऑल डिसीजेस। मतलब स्टीरॉइड, और जो भी आदमी अगर स्टीरॉइड दे रहा है, कोई भी डॉक्टर हो, नहीं तो कोई भी होम्योपैथ हो, अगर स्टीरॉइड देगा तो उसके साइड इफेक्ट्स आपको 10 से 15 दिन में दिखाई देगा। उसके ट्रिमेंडस साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, वजन मोटापा होना, पैरों में सूजन आना, बाल जाना, फिर नींद नहीं आना। देयर आर सो मेनी सिम्टम्स, कैटरैक्ट है, देयर आर सो मेनी सिम्टम्स अगर जो आदमी स्टीरॉइड्स ले रहा है। तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट कोई भी होम्योपैथ एटलीस्ट बॉम्बे जैसे सेटअप में एक स्टीरॉइड देगा। अगर किसी को गलत करना है तो किधर कोई भी फील्ड में गलत कर ही सकता है, बट होम्योपैथी एज सच डज नॉट कंटेन एनी स्टीरॉइड्स। मतलब ये कॉमन एक हमको ओपिनियन होता है, अरे आपको एक हफ्ते में फर्क पड़ा मतलब आप स्टीरॉइड, होम्योपैथ स्टीरॉइड दे रहे हैं। वेल ऐसे कैसे हो सकता है? और फर्क नहीं पड़ा तो बोलेंगे कि अरे होम्योपैथी में कुछ दवाई नहीं रहती, वो प्लेसिबो है। सो देयर कैन नॉट बी टू स्टैंडर्ड्स फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज बेसिकली। फिर एक होता है कि सबको आप मीठी गोली देते हैं, उसमें दवाई नहीं है। मीठी गोलियां बेसिकली, और नहीं तो जो मिल्क शुगर हम लोग देते हैं, इट इज सुक्रोज, इट इज अ मीडियम जिसमें हम लोग दवाई ऐड करके देते हैं। तो उसमें दवाई ऐड की जाती है और दवाई दी जाती है। इट इज जस्ट अ मीडियम, इट इज नॉट अ मेडिसिन। गॉट इट? तो इसके लिए सबको वो व्हाइट पिल्स दिखाई देंगे, लेकिन उसमें दवाइयां अलग अलग दी जाती है, क्योंकि नियरली 5,000 के ऊपर दवाइयां आती है होम्योपैथिक में, जो अलग अलग पोटेंसीज में रहते हैं। तो इफ यू थिंक अबाउट पोटेंसी, तो कम से कम 20,000 के ऊपर दवाइयां जाएगी होम्योपैथिक, जो डिफरेंट पोटेंसी में अकॉर्डिंगली हम लोग वो दवाइयां देते हैं। तो ये जरूरी है समझना कि बाबा इट इज नॉट दैट एक ही मेडिसिन हम लोग सबको दे रहे हैं। दूसरी कि चलो कि होम्योपैथी स्वीट है तो ये डायबिटीज में ले सकते हैं क्या होम्योपैथिक मेडिसिन? ऑफ कोर्स डायबिटीज में ले सकते हैं। जो होम्योपैथिक डोज पूरे दिन में जाता है, जैसे मैंने बोला मिल्क शुगर है, इट इज नॉट ग्लूकोज ऑल्सो, it is the calorie content is not less than half, I would say 1/4 teaspoon of sugar maximum, उतना आप ले रहे हो, उसके ऊपर आपका शुगर कंटेंट नहीं है। और डायबिटीज में हम लोग और एक शुगर फ्री भी मेडिसिन आती है जो होम्योपैथिक में, वो हम लोग देते हैं काफी ज्यादा। लेकिन अगर आप नॉर्मली भी आप मेडिसिन ले रहे हो होम्योपैथी, तो शुगर कंटेंट हार्डली एनी रहता है, तो उसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा कॉमन आता है कि बाबा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, नहीं तो काफी जन आते हैं कि बाबा जिनको शुगर है, नहीं तो जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको थायराइड प्रॉब्लम्स है, नहीं तो जिनको सीवियर कोई बीमारियां है, वो लोग सीधा दवाइयां बंद कर देते हैं आफ्टर होम्योपैथिक मेडिसिन, व्हेन दे स्टार्ट होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ये कोई भी डॉक्टर रेकमेंड नहीं करता है, तो प्लीज ये मत कीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसा नहीं है कि आप ले रहे हो, इट इज नॉट अ हार्मोन जो हम लोग दे रहे हैं। जैसे इंसुलिन हम आपको नहीं दे रहे हैं, ये तो हम लोग ऐसे नहीं दे रहे कि कोई भी केमिकल दे रहे हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर इमीडिएटली ड्रॉप होगा। हाँ, तो अगर आप आपके एग्जिस्टिंग मेडिसिन बंद करोगे तो सडनली वो शूट अप होगा। आपका डायबिटीज है तो सडनली शूट अप होगा, थायराइड है तो सडनली शूट अप होगा, नहीं तो बीपी है तो शूट अप होगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा, हम आपको ट्रीट कर रहे हैं, आपके डिसीज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली जो सिस्टम बिगड़ा है आपके बॉडी में, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको तकलीफ हो रही है, वो प्रॉब्लम्स कम कम होते जाएंगे। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज नॉट समथिंग विच विल हैपन इमीडिएटली। एंड जैसे आप लेते जाओगे दवाइयां, वैसे वैसे आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट, नहीं तो शुगर की दवाई रिक्वायरमेंट, नहीं तो जो सोरियासिस में ले रहे हैं, नहीं तो अर्थराइटिस में ले रहे हैं, कोई भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ले रहे हैं, वो सब दवाइयां हम लोग खुद कम कम करते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रिपोर्ट्स। तो इमीडिएटली ये दवाइयां नहीं चेंज कर सकते, नहीं रोकना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ये बोला जाता है कि एलोपैथिक के साथ नहीं ले सकते। एलोपैथिक के साथ आप डेफिनेटली होम्योपैथी ले सकते हैं, लेकिन उसमें गैप रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपको होम्योपैथिक दवाई और एलोपैथिक एक साथ लेना है। और हमारी दवाई एलोपैथिक इफेक्ट कम नहीं करेगी, एलोपैथिक मेडिसिन हमारी दवाई की इफेक्ट कम करती है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग वो डोसेजेस एडजस्ट करते हैं।
so as you don't have any problems as well as कि आपकी problems की नहीं तो तकलीफ आपकी बढ़ेगी नहीं. So that is very important that you should not stop your medicines without consulting your homeopath or your doctor at all. जैसे हम लोग बोलते हैं योगा में आप प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, ओमकार करते हैं, भ्रामरी करते हैं, जिससे आप अपने थॉट्स प्रोसेस, आप अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं. सेम वे होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट्स एट अ सेंट्रल लेवल, एक्ट्स एट अ नर्व लेवल, वेयर जो थॉट प्रोसेस है वो आपका पॉजिटिव होने लगता है. आपकी एंजाइटी है, आपकी स्ट्रेस है, उसकी स्ट्रेस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाबा स्ट्रेस आपका चला जाएगा, नो, बट लेकिन स्ट्रेस टेकिंग एबिलिटी आपकी डेफिनेटली इंप्रूव होगी. जो स्ट्रेस की वजह से आपको जो बीमारियां होती हैं, जो आजकल जो भी क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं, क्रॉनिक डिसीजेस मतलब जो लॉन्ग स्टैंडिंग है, वो आप खुद को देखा होगा कि आपने कि बाबा कोई तो बड़ी घटना हुई होगी आपकी लाइफ में, नहीं तो एक कंटिन्यूस टेंशन होगा आपके लाइफ में. आफ्टर दैट यू आर स्टार्टेड गेटिंग दिस डिसीज. तो वो स्ट्रेस टेकिंग एबिलिटी ऑफ योर्स इज इम्प्रूव्ड, मींस आपके रिसोर्सेस हम लोग इम्प्रूव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बीमारी कम होने लगती है, नहीं तो बीमारी वैनिश होने लगती है. तो ये चीजें हैं, ये फैक्ट्स है जो होम्योपैथी के बारे में जनरल पब्लिक को क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने एड्रेस करने की कोशिश की. दूसरी मतलब हम लोग अभी जो हमारा मेन वर्किंग है, वी आर वर्किंग, ऑफ कोर्स वी आर ट्रीटिंग ऑल टाइप्स ऑफ डिसीज, लेकिन हमारा मेन काम कैंसर में हो रहा है. अरे बाबा होम्योपैथी कैंसर में कैसे काम करेगा, इट इज सच अ ड्रेडेड डिसीज और सच अ प्रॉब्लम. वेल, जैसे मैंने बोला कि होम्योपैथी is one of the fields like yoga है, like acupressure है, acupuncture है, नहीं तो yan जो आप चाइनीज मेडिसिन भी आप सोचते हो, टिबेटन मेडिसिन जो सोचते हैं, इनकी सबकी फिलॉसफी एक ही है कि आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करना है हमको. तो अगर आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, जो आपके खुद के अंदर जो डॉक्टर है उसको अगर हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे, ऑटोमेटिकली वो डिसीज आपकी कंट्रोल में आ जाएगी, कोई भी डिसीज होने दो. It may be thyroid, it may be a severe disease like CA also. तो CA की भी जो थियरी है, इट इज मल्टीपल इंजुरी थियरी, जो वायरस के साथ है, नहीं तो स्ट्रेस के साथ जो एसोसिएटेड होता है, नहीं तो जेनेटिक्स के साथ जो एसोसिएटेड हुआ है. तो अगर जो मैकेनिज्म बोला गया है, जो अभी तक हमको समझा है कि क्यों होता है, जो सप्रेसर जीन रहता है जो आप में, जो विच यू आर बॉर्न विथ, वो अगर डिफेक्टिव हो गया और वो सेल कंट्रोल मैकेनिज्म को स्टॉप नहीं कर पाया, तो आपको ये बीमारी होने लगती है. तो हम लोग की एक ओपीडी थी आसाम भवन में, which we were particularly doing only for cancer cases, which was a free OPD. We carried it for nearly 5 years. उधर के कमिश्नर है देवाशीष शर्मा, उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दी. उधर से कैसे हर दिन एक एक पूरी बस भर के टाटा हॉस्पिटल जाते थे कैंसर पेशेंट्स के लिए. तो हम लोग ने ये नहीं बोला कि आप कीमो स्टॉप करो, नहीं तो रेडियो स्टॉप करो. हम लोग ने बोला, जो हम लोग ने रिसर्च किया कि दोज पेशेंट्स हु आर अंडर कीमोथेरेपी एंड हु आर टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन्स टुगेदर, उनके रिजल्ट्स क्या है, और जो खाली कीमोथेरेपी ले रहे उनके रिजल्ट्स क्या है. तो ये देखा गया कि बाबा दोज हु आर अंडर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी एंड हु आर टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन्स टुगेदर, उनमें कीमो के साइड इफेक्ट्स, नहीं तो रेडियो के साइड इफेक्ट्स, नहीं तो फीवर आना, नहीं तो ब्लड काउंट्स कम होना, वो बहुत कम हो जाते हैं. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव सिग्निफिकेंटली. उससे हमको एनकरेजमेंट मिला कि बाबा चलो होम्योपैथी डेफिनेटली ये चीज में काम कर सकती है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि चलो हम लोग हर एक केस क्योर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं उसको, और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा पहले भी, द थियरी इज वेरी सिंपल. कोई भी बीमारी होने दे, कि हम लोग को पेशेंट को ट्रीट करते, वो बीमारी को ट्रीट नहीं करते. तो ये एक एडवांटेज भी है हमारे पास कि if the patient gives us a proper history, हम लोग उसको बराबर से इंटरप्रेट कर पाए, then कोई भी बीमारी हो बहुत आसान है for us to treat. It's a cake, it's like just a cake. लेकिन अगर हिस्ट्री नहीं देते, नहीं तो पेशेंट छुपाते हैं, हमको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो then it is difficult.
to cure the patient. तो एक रिक्वेस्ट, हम लोग कोई भी वेबिनार्स रहते हैं, नहीं तो जितने भी हमारे हम लोग यूट्यूब पे है, नहीं तो हम लोग सोशल सर्कल्स में हम लोग हमेशा बोलते हैं आप किधर भी जाओ, go to any homeopath, it is he should take your complete history in details, he should understand you, and you should give the full information. भले वो आपको सबसे छोटी भी इंफॉर्मेशन लगे, आपको लगे कि वो रेलेवेंट नहीं है आपके बीमारी के हिसाब से, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी हमको दवाई ढूंढने में आसानी हो सकती है. एंड आप जिसको आप बोल सकते हैं कि एक कोई बोलते हैं कि सालों लग जाएंगे ठीक होने में, वो आप you can get cured in 3 months. So it is not कि homeopathy acts slowly, homeopathy can act very fast. वो एक और एक मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करता है. जी, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, चलो मुझे अस्थमा है 15 साल से, मुझे डायबिटीज है 20 साल से, मुझे सोरियासिस है 20-15 साल से, तो यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि बाबा वो पेशेंट चलो 10 दिन में ठीक होए और 15 दिन में ठीक होए. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक टाइम. ये टाइप के केसेस में डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी क्या है सिम्टम्स की, कि आपको फैमिली हिस्ट्री है क्या. जैसे फैमिली हिस्ट्री अगर होगी हार्ट प्रॉब्लम्स की, नहीं तो डायबिटीज की है, नहीं तो जैसे मैंने बोला स्किन प्रॉब्लम्स की है, यस ऑफ कोर्स ये केसेस को टाइम लगने वाले 2 साल 5 साल भी लग सकते हैं ये केसेस. लेकिन हमारे पास बच्चे जो आते हैं, बच्चों को सबसे आसान है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिलाना, नहीं तो लेना. दवाइयां मीठी रहती है, दे आर क्रेजी फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन. मेजॉरिटी चिल्ड्रन हु कम टू अस, उसमें उनको बुखार है, सर्दी खांसी है, कोई भी प्रॉब्लम है, विद इन आवर्स वो ठीक हो सकते हैं. जैसे यू ऑल मस्ट हैव एक्सपीरियंस कि बाबा आप एलोपैथिक मेडिसिन भी लोगे, वायरल है, नहीं तो कोई भी टाइप का बुखार है, इट कैन टेक अप टू 5 days और अ वीक, एंड देन यू गो ऑन गिविंग एंटीबायोटिक्स. उसके बाद उनकी एपिटाइट चली जाती है, वो वॉमिट करने लगते हैं, उनको वीकनेस लगती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है. ये सब कोई भी चीज होम्योपैथिक से नहीं होता है बिल्कुल. So those children who are under homeopathic treatment, first of all, chances of them falling sick decreases significantly. Or even if they fall sick, the fever will be maximum 100, 100.5. उसके ऊपर it is a record 90% of the cases में हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं. 10% केसेस में हम लोग खुद ही बोलते चलो अभी हमारे से कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है, क्यों, बिकॉज हिस्ट्री काफी क्लियर नहीं है ड्यूरिंग दैट इलनेस. तो यू मे गो टू योर पीडियाट्रिशियन और यू मे टेक एलोपैथिक मेडिसिन, लेकिन ये दिस इज वेरी रेयर. तो एक बार दवाई सूट हो गई, बच्चा है, बूढ़ा है, यंग है, कोई भी है, तो देन देयर इज इट इज अ कंप्लीट ट्रीटमेंट बस में. यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट आपको दूसरी जरूरत नहीं है. बाकी यस, आपको एक्सरसाइज करना, डाइट पे ध्यान देना, धूप लेना रोज, क्योंकि हम लोग बिलीव नहीं करते कि चलो आप, जैसे बॉम्बे में एपिडेमिक ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, ने तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी, हर एक जन बोलते हैं कि विटामिन डी लो. बॉम्बे में तो इतनी धूप है, धूप लो, व्हाई यू वांट टू टेक मेडिसिन ऑफ विटामिन डी. एट इवन 10-15 मिनट की आप धूप ले लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है. एक क्वेश्चन आया है, सर होम्योपैथी इज कॉस्टली. ये देखिए, होम्योपैथी इज नॉट कॉस्टली, बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन whom यू गो टू. जैसे हमारे चार्जेस हाई है, लेकिन हम लोग को उतना टाइम देना पड़ता है पेशेंट पे. हम लोग ये देखते हैं कि हर एक पेशेंट पे, नए केसेस पे हम लोग 1 घंटा तो मिनिमम देते हैं, जो कंसल्टेशन हम लोग लेते हैं टू अंडरस्टैंड द केस. उसके बाद इतना नहीं है, लेकिन टोटल 1 साल का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आप कितने भी बड़े डॉक्टर के पास जाओ, it won't be more than 2 days of hospitalization. आप 2 दिन हॉस्पिटल में बुखार के लिए भी एडमिट हो जाओ, जितना खर्चा होएगा उतना आपका पूरा साल का ट्रीटमेंट में नहीं होगा होम्योपैथिक में. और इफ यू आर अंडर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, चांसेस ऑफ यू गेटिंग एनी मेजर इलनेसेस डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, जैसे मैंने पहले भी बोला है. और एक क्वेश्चन था, व्हाई द सिम्टम्स एग्रेवेट इन द स्टार्टिंग ऑफ इनटेक ऑफ मेडिसिन. ये एक मिसकंसेप्शन है कि सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं ऑफ टेकिंग मेडिसिन. ये कैसा है कि दोज पीपल हु आर ऑन स्टीरॉइड्स बेसिकली, और हु आर ऑन इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स,
नहीं तो जो स्किन पेशेंट्स है, जो स्टीरॉइड, नहीं तो ऑइंटमेंट्स, आप बेटनोवेट आपने यूज किया होगा काफी टाइम, डिप्रोवेट, ये सब जो वेट जो रहता है, इसमें सब में स्टीरॉइड्स रहते हैं। ऑल दिस एप्लीकेशन जो आप यूज करते हैं एक्जिमा के लिए, नहीं तो सोरियासिस के लिए, नहीं तो स्किन डिसीजेस में, इसमें मेजॉरिटी ऑइंटमेंट में स्टीरॉइड्स रहता है। तो होम्योपैथिक कंसेप्ट क्या रहता है कि आप वो बीमारियों को दबा रहे हैं, बेसिकली यू आर सप्रेसिंग द सिम्टम्स, यू आर नॉट क्योरिंग द सिम्टम्स। जैसे आप वो ऑइंटमेंट यूज करना बंद कर दोगे, यू स्टॉप यूजिंग दैट, ऑटोमेटिकली इट विल फ्लेयर अप वेरी फास्ट। तो हम लोग वो दवाइयां बंद करते हैं। हाँ, एंड होम्योपैथिक थियरी के हिसाब से ऑल डिसीजेस स्टार्ट फ्रॉम द स्किन एंड गो इनसाइड। मतलब वो थियरी क्या है कि डिसीज ट्रेवल्स फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन, सॉरी फ्रॉम लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन, और जब भी क्योर होता है तो इट द क्योर ऑकर्स फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन। मतलब जिनको भी अस्थमा है, नहीं तो ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम है, उन्होंने अगर वो अपनी हिस्ट्री देखे, उनको कभी ना कभी तो स्किन प्रॉब्लम हुआ होगा। तो ये स्किन प्रॉब्लम जब भी आप सप्रेस करते हैं बाय मींस ऑफ मेडिसिन एप्लीकेशन, जो दबा देते हैं, तो आफ्टर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जैसे आपका अस्थमा, नहीं तो ब्रेथलेसनेस कम होते जाएगा, वैसे आपके स्किन प्रॉब्लम बढ़ेंगे, बिकॉज इट इज अ मोर द डिसीज कम्स आउट। तो ये हम लोग आप बोल सकते हैं कि ये एग, बट एक्चुअली एग्रेवेशन नहीं हो गई आपको दवाई लेने के बाद। मतलब आपको कोई सीरियस बीमारी है और दवाई लेने के बाद सडनली यू लैंड अप इन हॉस्पिटलाइजेशन, यस, देन दैट इज रॉन्ग, दैट मींस वो दवाई गलत है। इट इज नॉट होम्योपैथिक एग्रेवेशन, इट डिसीज एग्रेवेशन, नहीं तो वो दवाई काम ही नहीं की है। और ये एग्रेवेशन आप जो बोलते हैं, कोई कोई जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, जिनको डायबिटीज है, नहीं तो जिनको ब्लड प्रेशर है, वो सडनली अपनी मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं, और फिर उनका डायबिटीज में तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 10 दिन के बाद मेरे को आके बोले, अरे मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा डायबिटीज बढ़ गया। अरे आपको किसने बोला दवाई स्टॉप करनी? यू शुड नॉट स्टॉप दैट मेडिसिन, इट शुड बी स्टॉप एंड इट शुड बी टेपर्ड ऑफ ग्रेजुअली। तो फिर आपको एग्रेवेशन हो ही नहीं सकते। Prasanna Padde, okay, I have severe problem of PMS right from the beginning of my, it's more than 27 years old. Will homeopathy help? Yes, PMS के लिए 101% homeopathy helps. जैसे PMS में irritability होती है, headaches होते हैं, कभी कभी fever होता है, pain होता है stomach में. It is basically due to hormonal problems. It can be related to PCOD also. मतलब एक sonography किया होगा तो हमको पता लगेगा. And it is not a very difficult disease to treat. PMS can definitely be treated very easily. लेकिन जो फॉर्मेट रहेगा वो सेम रहेगा। हम लोग को डिटेल में केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट की, एग्जैक्टली किस वजह से होता है। नहीं तो जो एंजाइटी प्रोन रहते हैं, नहीं तो जो बहुत इमोशनल रहते हैं, बेसिकली नेचर वाइज बहुत सेंसिटिव रहते हैं, उनको पीएमएस होने के चांसेस और ज्यादा रहते हैं। तो हम लोग को वो नेचर को भी ट्रीट करना पड़ता है। ओके, Acha, Atharva's mother. Okay, nice to see you on the platform. Is there gender difference in response to homeopathic treatment? Any such research, or what is your experience? Second question is, what is the most challenging disease disorder for homeopathy to treat? Gender difference response in homeopathic treatment. Well, we can say males are more psychotic. साइकोटिक मतलब दे आर थिक स्किन, वो कंप्लीट हिस्ट्री देते नहीं है, दे आर वेरी ऑब्स्टिनेट. इट कैन बी बोथ मेल एंड फीमेल, लेकिन मेन में ये ज्यादा दिखाई देता है, while females are more sensitive, more receptive in nature. So we normally find कि females comparatively respond more faster to homeopathic treatment. But it is applicable for everybody. जो भी जिद्दी है, हम लोग बोलते हैं कि those who don't yield to reason very easily, they don't yield to change very easily. उनमें आप जैसे योगा भी कर रहे हो तो वो आसन होगा नहीं उनसे, because the body will be very stiff. तो stiff personalities में it will take time to treat compared to those people who are mild. Second question is, what is the most challenging disease or disorder in homeopathy? With
homeopathy, there are no challenges or there are no disorders which are real challenges. Yes, surgical diseases where the person requires surgery, जैसे hernia है, for example, or there are severe gallstones, मतलब वो complete gallbladder collapse हो गया है, हाँ, नहीं तो last stage of appendicitis, मतलब basically surgical diseases are difficult to treat by homeopathy. और चैलेंज यही हमारे पास रहता है कि बाबा इफ आप हिस्ट्री दोगे नहीं हमको तो हम लोग आपको कुछ भी नहीं कर सकते. वी कैन नॉट ट्रीट अ सिंपल कफ एंड कोल्ड आल्सो. मतलब हिस्ट्री नहीं होगी तो दैट इज द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक वी हैव एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. मतलब आप बोलोगे नहीं तो मैं कैसे ट्रीट करूंगा. Then good evening. Why is it mandatory not to eat or drink before and after eating homeopathic medicine? ये देखिए homeopathic medicine question है, why is it mandatory not to eat or drink before and after eating homeopathic medicine? See, homeopathic medicine हम लोग टंग पे रखने को बोलते हैं, मतलब चूसना है उसको. बेसिकली मेडिसिन को दे आर स्वीट ग्लोब्यूल्स और पाउडर. हम लोग उसको च्यू नहीं करना है, नहीं तो निगलना नहीं है. आपको अगर सबको मालूम होगा मैक्सिमम रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन योर टंग. सबसे ज्यादा रिसेप्टर्स जो रहते हैं, नर्व एंडिंग्स, सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग्स टंग में रहते हैं. तो द कंसेप्ट इज दैट आवर मेडिसिन एक्ट्स टू द टंग. मतलब आपको पेट तक जाने की जरूरत ही नहीं है. जो जिन पे एक्यूरेट रहती है मेडिसिन, जो हम लोग की डायग्नोसिस एक्यूरेट है, पेशेंट हमारे अंदर है, ट्रीटमेंट है, तो हम लोग काफी पेशेंट्स को बोलते हैं चलो दवाई लो, इधर 10 मिनट बैठो. It may be a headache, it may be asthma, it can be migraine और fever भी होगा, तो हम लोग बाहर ही बिठाते पेशेंट को. टंग पे दिया है, within 10 minutes the patient starts showing improvement. तो अगर टेस्ट होगा कोई भी मुंह में, जैसे if you have taken garlic है आपके मुंह में, नहीं तो पान पराग है, नहीं तो you are a smoker, नहीं तो टोबैको आप च्यू कर रहे हैं, तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन कम काम करेगी. बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस, योर टंग की सेंसेशन ही कम हो जाती है. हाँ, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि चलो 10 मिनट पहले और बाद में कुछ खाओ मत, कुछ पियो मत बिफोर टेकिंग, सो दैट देयर इज नो टेस्ट इन द माउथ एंड द मेडिसिन कैन एक्ट बेटर. दैट इज व्हाई हम लोग ऑनियन रॉ गार्लिक ना बोलते, बिकॉज इट इज अ स्टिमुलेंट, इट्स एन एस्ट्रिंजेंट. उसका स्मेल मुंह में काफी टाइम तक रहता है. एनी अदर क्वेश्चंस? Yeah, so we can end the session now. I don't think anybody has got any questions. Yes. Yeah. So, Dr. Abhay Patil, thank you so much for being with us once again and making us understand the myth about homeopathy. You know what myth we have? शक्कर की गोली है, steroids है. And one very good thing you said that अंदर की डॉक्टर को जगाओ, अंदर की डॉक्टर को स्ट्रॉन्ग करो, which is a very important thing. कोई डॉक्टर आपको कुछ नहीं कर सकेगा unless आपके अंदर के चीज को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तो how will a doctor or any medicine work on you? Thank you so much again. And how alternate medicine works holistically. जैसे डॉक्टर ने बताया कि हम इसके ऊपर काम नहीं करते कि आपका पेट दर्द तो पेट के ऊपर ध्यान देंगे, आपके किडनी की इश्यूज है किडनी के ऊपर ध्यान देंगे, कान के इश्यूज है कान के ऊपर ध्यान नहीं देंगे. We work holistically. The alternate medicine works holistically. So thank you very much again, once again, Dr. Abhay Patil. Hope to see you in the again in this platform. Yes, once again. There's only one question. What about coffee? Dr. Deepak. Okay, see, coffee is black coffee. We don't advocate because black coffee again is a stimulant. So any sort of strong stimulants like Nilgiri, eucalyptus, coffee, strong perfume, strong deos, we don't advocate in homeopathy as such. But it is now, but when medicines are given in high potency, like 1 mg, which we, after taking the case, which we give. So even coffee doesn't create any problem as such. But then as possible, Doctor. Okay, fine. Doctor, there is of home astrology. I think so. We'll take it up now. Yeah. There is one Dr. Riddhi. Yes. Dr. Thakkar. Dr. Riddhi Thakkar. Last question, Doctor. Dr. Riddhi Thakkar has raised. Please, the last question. Riddhi Thakkar. Sir, हम लोग Vicks भी use. Yes. Vicks भी
के लिए सर मना हाँ, तो करते हैं वही ना? मैंने आपको अभी बोला कि विक्स है, जैसे यूकेलिप्टस है, नीलगिरी है, इसमें मेंथॉल रहता है, मिंट रहता है मेंथॉल, Okay. तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट। Okay. हाँ, तो कोई भी चीज एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट स्किन पे भी आप यूज करोगे, हाँ, एप्लीकेशन भी होगा, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन का इफेक्ट कम कर देगा। दूसरी चीज मतलब कैम्फर जो रहता है, कैम्फर नहीं तो मिंट इज अ यूनिवर्सल एंटीडोट टू होम्योपैथिक मेडिसिन। मतलब कापूर आप रख भी नहीं सकते हो कैम्फर होम्योपैथिक मेडिसिन के बाजू में, नहीं तो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आप ले नहीं सकते हो। तो मेजोरिटी आप विक्स है, नहीं तो काफी चीजों में कैम्फर रहता है। Okay. हाँ, तो जैसे कोई कोई जनों को, जैसे इन्होंने एक जनों ने पूछा था एग्रेवेशन हुआ तो क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से, विच इज यूजुअली रेयर, लेकिन हुआ तो हम लोग उनको बोलते हैं आप विक्स लगा लो। नहीं तो कोई जन बच्चे रहते हैं पूरी बोतल एक साथ खा लेते हैं, ये तो हमारे पास कॉमन प्रॉब्लम आती है। उनको मिट्टी पसंद रहती है, किधर से भी छुपा रहता है वो इमीडिएटली खा लेंगे, तो हम लोग बोलते हैं चलो विक्स लगा दो, उसका इफेक्ट निकाल दो, सो एंटीडोट हो जाती है। तो स्पेसिफिकली सीरियस डिसीजेस में तो सीरियस एडवोकेटेड नहीं है, क्योंकि हमारे इफेक्ट कंप्लीट मेडिसिन का चला जा सकता है। Okay. Thank you. थैंक यू। Thank you. So we'll end this session here. Yeah. This reminded me of your question. Reminded me of the you've used sanitizers, no, nowadays to wash or clean our hands. There's a lot of alcohol in it. There is lot of alcohol. Yeah. Yes. That also is very dangerous. That is So also, better but use. we have to use it. Yeah, they have to use it. There is no other alternate now. There is no other alternative. Yes. Right. Okay. Thank you very much. Okay. And Thank you. doctor, again, once again, and we'll end the meeting here. Thank you so much. Yes. Thank Yeah, we'll you, chant sir. one Omkara, all of us. One Omkara. Close your eyes. Take a deep inhalation. Oh. Yes. Open your eyes gently. Hari Om. Thank you, all of you, for being with us today. We'll try to have doctor again in our coming talks, okay, and sessions. Thank you, doctor, once again. Thank you very much. God bless you all. Shubhratri. Have a wonderful time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.